Hello friends, welcome to my YouTube channel on current affairs. Today, before we begin this video, I will ask you some question. Do you know what is the Iron Dome and who has developed this Iron Dome? What is the Indian double mutant? Who is the Iron Lady of Kerala? And what is the 2-deoxy-D-glucose? So, don't worry, I am going to answer all these questions in my coming video. So let's begin. Before we begin, I will request you all to please go through, please subscribe my channel and like, comment and share with your friends also. So let's begin. 2-deoxy D-glucose. So this is a anti-COVID drug. Anti-COVID drug 2-deoxy D-glucose has been developed by INMAS, a lab of Defense Research and Development Organization. Please see that INMAS is a lab of a Defense Research Development Organization and it is developed in collaboration with Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad. So the Dr. Reddy's Laboratory is the industrial partner of the INMAS, which is a lab of a Defense Research and Development Organization, DRDO. The full form of INMAS is the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences. So and another full form which you should know is the DCGI. This term frequently comes in the newspaper, in the electronic and print media. Then DCGI. DCGI is a Drug Controller General of India. And what is the role of DCGI in India? The DCGI regulates the medicine which are going to come into the Indian market. It gives approval to the medicine for an Indian market. So whichever medicine comes into the Indian market, it gets approved by the DCGI. Then who is the current DCGI of India? The current DCGI of India is on the date 12/5/21. Please note this date. It's a Dr. V.G. Somani. So he is the current DCGI of India, and you should check in the future whether who has come or not, because this is information is as current as of 12/5/21. And another term is a CDSCO. So CDSCO is a Central Drug Standard Control Organization. So CDSCO stands for Central Drug Standard Control Organization. And so both this CDSCO and DCGI, they both regulate and give approval to the medicines in India. So if question comes, who gives approval to the medicine in India, and you could say that it is approved through DCGI from CDSCO. Let's move on to the second. It's also related to the coronavirus. So in these days हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि इंडियन डबल म्यूटेंट, ये डबल म्यूटेंट क्या है? सो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन का नाम है B1617. आप देख सकते हैं द इंडियन डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का नाम है B1617. B1617 is a double mutant because it has two mutations at 2 points E484Q and L425R. So E484Q. So at 2 points like 484 at this point and L425 at this point, the E has changed into Q and L has changed into R. So these are the two mutations. So if you don't know what is a mutation, mutation means any change in a genome sequence. वायरस के जीनोम सीक्वेंस में कोई भी चेंज आता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं. तो अगर किसी वायरस में 2 म्यूटेशन है तो उसको डबल म्यूटेंट कहेंगे, 1 म्यूटेशन है तो सिंगल म्यूटेंट कहेंगे. तो जो B1617 है वो डबल म्यूटेंट है, और डबल म्यूटेंट होने की वजह से वो ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है. उसके अंदर इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है और वो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को इवेड कर सकता है. जैसे हम यहाँ पे मैंने लिखा है दे आर मोर इन्फेक्शियस एंड दे कैन इवेड एंटीबॉडीज़. जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया को एलिमिनेट करती हैं या उनको रेस्ट्रिक्ट करती हैं, उनको रोकती हैं, उनसे भी ये बच जाता है, उनको इवेड कर सकता है. और हमारे इसके इंडियन म्यूटेंट के अलावा 2 और म्यूटेंट बहुत आजकल मीडिया में चलते हैं, इस यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स. सो B117 एंड B1351R2. B1117 is a United Kingdom variant and B1351 is a South Africa variant.
So do you know what is a INSACOG? INSACOG is a Indian SARS-CoV-2 Genome Sequencing Consortia. ये एक कंसोर्सिया है जो कि म्यूटेंट वायरस को सीक्वेंस करता है, इसके जीनोम को सीक्वेंस करता है। तब हमें पता चलता है कि ये वायरस म्यूटेंट है या नहीं है, या इसमें क्या म्यूटेशन है, ये ओरिजिनल वायरस से कितना डिफ़र हुआ है। तो ये काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसका ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये आपको ज़रूर पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। INSACOG क्या है? इट्स अ इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया। लेट्स मूव टू द सेकंड। इस आयरन डोम, मैंने पूछा था आयरन डोम क्या है, किसने बनाया है। तो आज आप कल देख रहे होंगे मीडिया में बहुत इज़राइल और फ़िलिस्तीन की झगड़े के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। तो आयरन डोम क्या है? तो आयरन डोम एक ऐसा मशीनरी है जो कि अगर फ़िलिस्तीन की तरफ से कोई भी रॉकेट इज़राइल की तरफ आता है तो उसको हवा में ही ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रॉकेट ही नहीं, कोई अगर फाइटर प्लेन या कोई भी एयरबॉर्न सिस्टम आता है, एयरबॉर्न सिस्टम मैंने लिखा हुआ है, अगर इजरायली एयर स्पेस में जाती है या कोई मिसाइल जाता है तो उसको ये इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द आयरन डोम इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है that comprises of a TAMIR interceptor and a radar that tracks and destroys any missile or airborne system that enters Israeli airspace। मतलब इजरायली एयर स्पेस में कोई भी आ गया, चाहे मिसाइल हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, उसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसकी इफ़िशियंसी के बारे में ये है कि अगर 100 रॉकेट दागे जाएंगे इजरायली एयर स्पेस में, तो उसमें से 90% को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब 90 को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसको डेवलप किसने किया था? इट वाज डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो ये इन दोनों के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट द यूएस हैज़ इट्स ऑल्सो, उसका खुद का एक आयरन डोम है जिसको स्काई हंटर कहते हैं, और इसको रैथियन और राफेल ने डेवलप किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि आयरन डोम इजराइल का है तो स्काई हंटर यूएस का है, तो यूएस का वर्जन क्या है? तो वो स्काई हंटर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आयरन डोम के बारे में। लेट्स मूव टू द अनदर वन। सो मैंने एक सवाल पूछा था शुरू में कि केरला की आयरन लेडी कौन है? तो केरला की आयरन लेडी KR गौरी अम्मा को कहते हैं। तो आइए इनके देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। Amma was a member of First State Assembly and the only woman in the First State Cabinet headed by legendary communist leader EMS Namboodiripad in 1957। जब 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी केरला में, तो उसकी ये एकमात्र वुमन मेंबर थी स्टेट कैबिनेट की, और उसमें ये मंत्री भी थी। सो गौरी अम्मा प्लेड अ key role in bringing the revolutionary agrarian relation bill, which set the ceiling on the amount of land a family could own, paving the way for landless farmers to claim excess lands। तो गौरी अम्मा ने बहुत ज़्यादा, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो लैंड रिफॉर्म में था। तो जिनके पास भी एक्सेस लैंड था, एक फैमिली कितना लैंड ओन कर सकती है, तो उस पर इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इससे ज़्यादा कोई फैमिली लैंड नहीं ओन कर सकती, और जो एक्सेस लैंड बचा उसको उन्होंने जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप देख सकते हैं KR गौरी अम्मा हैं ये। इनका बर्थ 14 जुलाई 1919 को हुआ था और इनकी डेथ हुई है 11 मई 2021 को। 11 मई को हुआ इनका डेथ। तो इनकी केरला पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इस करंट अफेयर्स की वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इसको लाइक करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाएं। इन दोनों को ज़रूर दबाएं। और आपको अच्छा लगा तो ये आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से प्लीज़ शेयर करें। इनको आप अपने फैमिली के बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी, उनका भी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करे। थैंक यू सो मच।